Hello, my dear students. Today we are going to start the another one topic on ionic equilibrium, which is also very important, and that is salt hydrolysis. A little bit part of this salt hydrolysis we have already discussed in my previous one video, but today we will discuss this topic in detail as it is having a very importance in your numerical portion and in your examination point of view. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेटा सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो इट इज बेसिकली सॉल्ट के अंदर जो कटायन और अनायन होता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इसमें प्रेजेंट जो होते हैं सॉल्ट में, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं Na पॉजिटिव NaCl की, तो उसके अंदर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर प्रेजेंट एज कटायन एंड anion, and when these Na positive and Cl negative react with water to produce either acidic, just 1 minute, either acidic or basic solution. So that reaction is basically a salt hydrolysis. माने कि salt का किसी भी salt का which is made up of acid and base reaction, when it reacts with water, that reaction, that hydrolysis, water का टूटना, तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस जो कि प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू दिस हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट्स जो होते हैं दैट इज क्लासिफाइड फर्दर इनटू 4 कैटेगरीज. ओके बच्चे, that is first salts of a strong acid and strong bases like NaCl. ये किस किस के बने हुए हैं बेटा? इसमें तो strong acid HCl प्लस NaOH लिया था, या NaNO3 HNO3 प्लस NaOH लिया गया, या Na2SO4 H2SO4 प्लस NaOH का बना हुआ है. So these are the examples of salts of strong acids and strong bases. ठीक है बच्चे? So being these salts, because these all salts are considered as the strong electrolytes which give cation and anion when dissolved in water. So these ions do not hydrolyze. Basically क्योंकि वो क्या है? Strong है, completely convert हो जाते हैं, and that's why these ions do not generally interact with water, and because of which we can say कि जब इन salts का water के साथ reaction होता है तो there will be no change in concentration of H positive and OH negative ions in the solution takes place. और इसलिए हम कह सकते हैं कि resulting solution ऐसे हाइड्रोलिसिस के केस में जहाँ की strong acid या strong base का बना हुआ salt present होता है, that is neutral, and hence we can say that the strong salts of strong acids and strong bases don't undergo hydrolysis and the resulting solution is neutral. ठीक है? Second category आती है when we are taking up weak acid and strong bases. तो ऐसे salt जो कि किसको मिला के बने हैं? Weak acids or strong bases को. For example, sodium acetate which is made up of CH3COOH, जैसे कि हम acetic acid कहते हैं, and plus NaOH. So now CH3COOH या acetic acid is a weak acid and NaOH is a strong acid. Similarly, carbonic acid H2CO3 plus सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है. ऐसे ही K2CO3 KOH एंड H2CO3 का बना हुआ. सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 formed H3PO4 phosphoric acid plus NaOH. So these are the examples of salts of weak acids and strong bases. बट जब इन सॉल्ट्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो दीज सॉल्ट्स प्रोड्यूस वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस आल्सो. ये क्या करते हैं? जब वाटर में जाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं.
ठीक है. So such a salt, solution of such salt, because they are producing OH negative ion, and that's why such a salt solution is usually alkaline in nature. Please make it very clear. अगर weak acid strong base से का salt water के साथ react करता है तो कैसा solution देगा? Alkaline solution देगा. ओके. अगली कैटेगरी आ जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट की. किस किस की आती है बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस सॉल्ट की. सो इसमें देखो जैसे बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl and ammonium hydroxide is a weak base. So that is made up of आपका copper hydroxide is a weak base and sulfuric acid H2SO4 is a strong acid. Ammonium hydroxide is a weak base NH4OH and HNO3 is a strong acid. ठीक है. Aluminium hydroxide AlOH3 is a weak base and HCl is a strong acid. So all these are examples of calcium hydroxide plus HCl, iron hydroxide plus HCl. These are the examples basically of salts of strong acid and weak bases. और जब इन salts को हम water में क्या रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयंस. बेटा ये यहाँ पर नहीं जाएंगे. These are producing, क्या देंगे ये हमको? H, just 1 minute. These salts produce H positive ions. तो ऐसे salts जो कि किससे बने हुए हैं? Strong acid and weak base के, that such type of salt solutions are acidic in nature. ये कैसे होंगे बच्चे? एसिडिक इन नेचर. सिंपल है बेटा. अगर मेरा H पॉजिटिव सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा. अगर मेरा सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है OH नेगेटिव को तो वो क्या होगा? एल्कलाइन होगा. अगला आ जाती है कैटेगरी वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट. ना H2CO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है और वीक ही बेस है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड H3PO4 वीक बेस वीक एसिड. CH3COOH जिसे कि हम एसिटिक एसिड कहते हैं प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड weak acid, weak base. See, these all are the examples of salts of weak acid with weak base. And on treating these salts with water, it produces parent weak acid and weak base. Means dissociation में ना H positive मिल रहा है ना ही OH negative. दोनों आ रहे हैं. Both it involves both cationic and anionic hydrolysis, and due to which the resulting solution कैसा होगा? न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक. सो डिपेंड करेगा कि इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है वीक एसिड एंड वीक बेस का. बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, वेदर इट विल बी न्यूट्रल अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है. अगर थोड़ा बहुत स्लाइटली एसिड प्रोड्यूस कर रहा है माने H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो वीकली एसिड होगा, और स्लाइटली OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक बेस कंसिडर होगा. अगला आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये बेटा हमने बताया कि जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, lead chloride, these are to be considered insoluble salts. माने ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. लेकिन बेसिकली अगर कहा जाए तो no one salt is insoluble in water. They are slightly, sparingly soluble in water, and which are slightly dissolved in water. Such salts are known as sparingly soluble salt. For example, if I stirred silver chloride in water, so it also dissolve in water to a very, very small
extent. Why? Because as I said that usually all the salts या तो बहुत ज़्यादा dissolve होंगे, but there are few salts which are considered to be insoluble, but still even after the in spite of insoluble salts, they are sparingly, बहुत कम, slightly soluble in water, and these also uh, dissolve in water to a very small extent, and it forms the saturated solution at a given temperature. ठीक है, और एक टेम्परेचर पे आके वो सैचुरेटेड सोल्यूशन भी देता है. सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर बेटा जो आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि A पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोल्यूशन में, दैट स्टार्ट कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड रिप्रोड्यूस, दोबारा से क्या देने लग जाते हैं, सॉलिड फेस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम is established in between solute and ions in the solution. तो generally जो KSP है, solubility product of sparingly soluble salt at a given temperature, is nothing but it is defined as the product of molar concentration of ions. क्या मोलर का बेटा, क्योंकि देखो सॉल्ट है और गिव ब्रेकअप हो रहा है आयंस में, तो वही आपकी फिर वही प्रोडक्ट आ गया कोई भी. तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर देयर इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन concentration of reactant. तो वहीं पे आएगा कि molar concentration of ion in saturated solution in which each concentration terms being raised to the power equal to stoichiometric coefficient of ions in balance equation. ठीक है जी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, KSP of sparingly soluble salt. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारा डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट. ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड कह सकते हैं. अगर आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, तो सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड, मतलब it can dissolve more solute at a given temperature. अगर हम कह रहे हैं कि ionic product is equals to the solubility product, then it means the solution is saturated. अब उसमें और solute dissolve नहीं किया जा सकता. और अगर मैं कहती हूँ कि ionic product is more than solubility product, then it is known as supersaturated solution. मीन्स कि क्या होने लग गया, प्रेसिपिटेशन, रिप्रोडक्शन होने लग गया, रिप्रोड्यूस कर रहा है सॉल्ट अपने आप को, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस. कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एंड solubility product, we can predict whether the precipitation will occur or not. ठीक है, समझ आई कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, वो हमें कब पता चलेगा, जब मुझे आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज पता होंगी. एंड व्हेन टू, बेटा प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा, व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग कॉमन आयंस आर मिक्स्ड टुगेदर. जैसे कि अगर बात कर रही हूँ आयनिक, हमने ऑलरेडी बता दिया कि आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा, दैट विल टेक प्लेस. अदरवाइज दोनों कंडीशंस में जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होगा या उससे कम होगा, तो दोनों ही कंडीशन में प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस नहीं करेगा. एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन. हम क्या कहते हैं बेटा, थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप इन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो जैसे हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट इज
related with solubility. Solubility क्या होती है बेटा? Simple, amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solvent. To prepare कैसा solution बनाना है? Saturated solution. और solubility is applicable to all type of solutes, whether that is electrolytic in nature or non-electrolytic in nature. लेकिन solubility प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना sparingly या slightly soluble electrolytes पे applicable होता है. Magnitude of solubility decrease करती है on addition of other electrolyte having common ion at given temperature. लेकिन solubility product कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे हम कितना भी इलेक्ट्रोलाइट एक कॉमन आयन का ऐड ऑन कर रहे हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों ही में सिमिलैरिटी है, दैट बोथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है ना. ये आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, सो जस्ट गो थ्रू इट. नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है ना. कॉमन आयन इफेक्ट मैंने जैसे कहा ना कि कुछ आयन ऐसे होंगे जो कि कॉमन हो जाएंगे, आपका सॉल्युबिलिटी में दोनों में प्रेजेंट होंगे. तो द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of weak electrolyte in presence of strong electrolyte, जिसमें कि क्या हो, common ion present हो to the weak electrolyte is known as a common ion effect. देखो अब समझाती हूँ. जैसे कि मैंने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया. अब अमोनियम दोनों में क्या है, कॉमन है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, और ड्यू टू कॉमन आयन प्रेजेंट इन इट, दैट इज अमोनियम आयन. कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन हम एक एक करके करते हैं. पहली आ जाती है प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है बेटा, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूशन. तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ये बताते हैं कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर NaCl का प्रेसिपिटेशन करना है तो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, और फिर उसमें हमें क्या डालना है, Na क्या डालना है हमें, that we have to add sodium salt in, and then HCl gas is also passed through this solution. और फिर हम उसमें अगर सपोज HCl भी डाल देते हैं, पहले हम NaCl डालेंगे वाटर में और फिर HCl डालेंगे, तो अब दोनों में NaCl प्लस वाटर फिर HCl प्लस वाटर, HCl डाला तो दोनों में जो कॉमन आयन रहा वो क्या रहा, Cl नेगेटिव आयन या क्लोराइड. तो आयोनाइजेशन NaCl का क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वजह से सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि NaCl अब क्या हो जाएगा, देखो बेटा Cl ज्यादा हो गया, जब Cl ज्यादा हो जाएगा तो NaCl क्या करने लग जाएगा, वापस अपने को प्रेसिपिटेशन करेगा. ठीक है, सो व्हेन HCl गैस इज पास्ड तो Cl नेगेटिव इंक्रीज हुआ, और जिसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या कर गया, Ksp की वैल्यू को एक्सीड कर गया, एंड दैट्स व्हाई NaCl इज प्रेसिपिटेटेड. वो वापस क्या करने लगेगा, बिकॉज ऑफ द कॉमन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑफ क्लोराइड NaCl गेट्स प्रेसिपिटेटेड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसी में हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस. हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ये आपका सॉल्ट एनालिसिस जिसे आप कहते हो, उसके अंदर जो कैटायंस का करते हैं, तो उसके अंदर भी बेटा ये हम देखते हैं कि मेटल आयंस जो है
वो कॉमन आयन की तरह क्या होता है, कॉमन आयन की वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 के मेटल आयंस जो होते हैं उनके लिए हम क्या डालते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड लेके आते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर हम सोडियम सल्फाइड ऐड करते हैं, बट बेसिकली H2S गैस ऐड होती है इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में, ठीक है। और जिसके अंदर HCl ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो मेटल आयंस जैसे कि लेड है, ग्रुप 2 के मेटल आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव, mercurous 2 positive, cadmium 2 positive, all of these get precipitated in the form of sulfide। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि H2S सप्रेस कर देता है कॉमन हाइड्रोजन आयन इफेक्ट को। देखो H2S करा तो ये ब्रेकअप हुआ 2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड, और जब HCl टूटा तो वो भी H पॉजिटिव और सल्फाइड में। तो यहाँ पर ग्रुप 2 के अंदर जो है सल्फाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है। और क्यों कम है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन क्या है, H पॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से जिसकी कम है वो क्या करने लगेगा, इस केस में आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड आयंस एंड मेटल आयंस दैट विल बी क्वाइट लो, लेकिन इनकी solubility प्रोडक्ट जो है that is also comparatively low than the ionic product, and that's why group 2 metal ions जो होंगे वो precipitate हो जाएंगे, कैसे, सल्फाइड्स की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, सो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ऐसे ही बेटा ये भी बिल्कुल सेम है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की तरह होता है ग्रुप 3 में, एल्यूमिनियम और आयरन के केस में, और क्रोमियम के केस में। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम जो है वो क्या हो गया, कॉमन आयन है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगी हाइड्रोक्साइड्स की, जो कि थर्ड ग्रुप के मेटल आयंस के हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, दैट solubility will be low, and because of which ionic product will exceed their solubility product, and hence that gets precipitated. Similarly, sulfides of group 3b मेटल आयंस जैसे कि निकल, मैग्नीज, जिंक, इनके लिए बेटा ग्रुप 3 में हम क्या ऐड ऑन करते हैं, H2S। अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सप्रेस करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, और हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और कम हो जाएगी। तो that will give increase in concentration of sulfide ions. Okay. Ah, mm. So this is last, based on this all principal applications of common ion effect. I am giving to give you one assignment which you have to do on the basis of the presentation which I give to you, that what is common ion effect, उसकी applications क्या हैं, कहाँ कहाँ पे precipitation के लिए वो use हो रहा है common ion effect, qualitative analysis में वो सारा explain कीजिएगा, ionic product और solubility product में क्या difference है, salt hydrolysis क्या होता है, and साथ में please इसके notes भी जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी बेटा अब न्यूमेरिकल्स पे होगी। सो टिल दैट टाइम, thank you to all of you. If you have any doubt, you can personal chat me also. Thank you.